Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे। व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। 23314444, 23421050 और 23310464। इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने और खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, benchmark domestic indices end in negative territory. Sensex slips over 300 points. Nifty closes below 25,600. Major Asian markets end mixed. And International Monetary Fund raises India's economic growth projection to 7.3% for the current fiscal year. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक की गिरावट में रहा। निफ्टी 25,600 के नीचे आ गया। प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। Before we move any further, here's an announcement for our listener friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और आइए अब चलें शेयर बाजारों की ओर, जहां प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सप्ताह के पहले दिन मंदी पर बंद हुए। सेंसेक्स 0.39% की गिरावट से 324 अंक कम होकर 83,246 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.42% की मंदी से 109 अंक गिरकर 25,586 पर दर्ज हुआ। दोनों सूचकांक सत्र की शुरुआत में कमजोरी के साथ खुले और सत्र के दौरान अधिकांश रूप से एक सीमित दायरे के बीच उतार चढ़ाव हुआ। हालांकि कारोबार के अंतिम घंटे में दोनों सूचकांक में आंशिक सुधार देखने को मिला। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 0.4% से अधिक नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1.3% की भारी गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended the first trading day of the week on a bearish note. The Sensex slipped 324 points or 0.39% to close at 83,246, while Nifty dropped 109 points or 0.42% to settle at 25,586.
Both indices started the session on a weak footing and traded within a narrow range for most of the day. However, in the last hour of the trade, the indices managed to recover some of their losses. The broader market at the Bombay Stock Exchange also declined. The mid-cap index dipped over 0.4%, while the small cap index shed nearly 1.3%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 के शेयरों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में इंडिगो का शेयर 4.3% के उछाल में रहा। टेक महिंद्रा 2.8% से अधिक बढ़ गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में लगभग 2.3% की वृद्धि दर्ज हुई। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में रिलायंस का शेयर 3% से अधिक लुढ़क गया। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में लगभग 2.3% की गिरावट दर्ज हुई और एटर्नल के शेयर में 2.2% का नुकसान दर्ज हुआ। Among the sectoral indices at the BSE, 18 out of 22 sectors edged down. On the losing side, realty dipped over 1.9%, energy dropped 1.5%, and oil and gas shed more than 1.3%. Among the gainers, FMCG as well as services both climbed 0.4%. Capital goods increased nearly 0.4%, and auto edged up 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,075 declined, 1,226 companies advanced and 182 remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 91 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.2 पर था। और अब हमारी आज की पहली कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, अंजलि पूना से। आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में। अपना सवाल पूछे जी। अंजलि, आप हमें सुन पा रही हैं? Hello. Okay, I think she's gone off the hook. We are now joined by Ramesh, who's calling us from Delhi. जी रमेश जी, सवाल पूछिए. Hello. Okay, I think we've lost that somehow. Let's move on and let's take a look at the Asian and European markets, shall we? इससे पहले आपका एक कमेंट चाहेंगे शेयर बाजार की अभी की धारणा पर। आपको क्या आगे के प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं? कौन से मेन ट्रिगर्स हैं जो बाजार को अब आगे डायरेक्शन देंगे आपके अनुसार? देखिए, अगर पिछले 2-3 दिनों में आप देखें कि जिस तरीके से यूरोप के देशों और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड को लेकर के जो तनातनी देखने को मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं असर शेयर बाजार पे है। और शेयर बाजार इस समय एक अनिश्चितता के दौर में इसलिए है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। आप हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ प्रतिकूल खबरें सुन रही हैं, समझ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और यही वजह है कि बाजार अभी जिसे गिरावट के दौर में आप कहिए। अब जो बाजार के लिए जो ट्रिगर आप कह सकती हैं वो बजट के ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 19 तारीख का है। आज से 11 दिन के बाद जब बजट पेश होगा वित्त वर्ष 2026-27 का, उसमें किन किन क्षेत्रों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। Well, before we move any further, we're now joined by Murtaza from Mumbai. जी मुर्तजा जी, सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल है कि मुझे जानना है कि जिस जगह पैसा मैंने लगाओ जो मुझे महीने में कम से कम 5-6 हजार रुपया इनकम मिले। ओके। और दूसरा सवाल है कि मैं गोल्ड कब ले सकता हूँ? ओके, देखिए मुर्तजा जी, अगर जो आप बात करें कि महीने में 6,000 कम से कम आपके पास आमदनी आती रहे तो इसके लिए बेहतर है कि बैंक के जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं वहां रख सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में, यदि उम्र आपकी 60 वर्ष से ज्यादा हो चली है तो आप वहां पर जो मंथली सेविंग स्कीम्स हैं उसमें पैसा रख सकते हैं। दोनों में आप अगर एक जिसे कहा जाए कि रकम बहुत बताना मुश्किल है इस समय में क्योंकि ब्याज दरों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास 10 लाख या 15 लाख की रकम है जिसे आप बैंक में रख सकते हैं तो आपके पास इस तरह की रकम की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये मैं एक शर्त
इसमें जोड़ रहा हूं कि ब्याज दरों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है और इस साल जो रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट है उसमें 1.25% की कटौती हुई है, लेकिन वो अभी जमा में पूरी तरह से नहीं गया, लगभग 60 अंक यानी कि आधे का हुआ, अभी आधा बाकी है। तो आपके लिए रकम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर शेयर मार्केट के द्वारा करें तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी देखिए, शेयर बाजार की जगह पे आप जब म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं वहां पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का आपके पास विकल्प होता है, क्योंकि जब आप शेयर बाजार में लगाते हैं तो आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि आपको इतनी रकम मिलनी ही मिलनी है। कहते हैं ना कि शेयर बाजार में मूल भी कभी कभी जो है वो बट्टा लग जाता है। तो ऐसे में शेयर बाजार में चूंकि उन्होंने कहा कि हर महीने इतनी रकम चाहिए, तो एक तय रकम चाहिए, तो आपके लिए बैंक या डाकघर की बचत योजना एक स्टैंडिंग इनकम हो जाए। बिल्कुल। सोने के बारे में भी उन्होंने पूछा था कि जो दूसरा प्रश्न था, उन्होंने कहा कि सोने में खरीद का वक्त है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और अगर फिर भी सोने में जाना चाहते हैं तो उनको गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए। उसमें आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट की बात करें तो वहां पर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1 ग्राम 2 ग्राम सोना तो आप खरीदेंगे नहीं। आज के दिन में 1.5 लाख आज अगर कीमत की बात करें तो वो ज्यादा ही है, रिकॉर्ड हाई पे है। तो ऐसे में सोना अगर फिजिकल मेटल खरीदना हो उससे अच्छा है आप गोल्ड ईटीएफ में जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। दिल्ली से अमित है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछे। हाँ जी, मार्केट मंत्री टीम का नमस्कार। सिन्हा सर, मेरे 2 प्रश्न सर जी। एक तो ये है कि पहले डीएमए अगर हम देखें तो 50 डीएमए 120 कौन सा डीएमए बेहतर होता है, पहली बात। दूसरी बात सर कि आईपीओ के लिए अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस सेबी में अप्लाई करती है तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च लाएंगे, या फिर वो प्राइस बैंड कैसे डिसाइड होगा कि ये कंपनी के शेयर के प्राइस बैंड जो होगा 50 होगा या 100 होगा या XYZ रेट होगा। धन्यवाद सर। आपने अमित जी किस डीएमए में 100 डीएमए की बात की, 120 की बात की आपने? 50 और 20 का पूछ रहे थे वो। अच्छा, 50 और 20 का पूछ रहे थे। देखिए, डीएमए में आप अगर 50 का ले तो वो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा लॉन्गर पीरियड रहता है तो आपके लिए ज्यादा लंबे समय का हो तो ज्यादा बेहतर है। आईपीओ का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए शेयर बाजार में एक तरीके से लोग कहते हैं ना, सेबी ने दस्तावेज मंजूर किए। सबसे पहली धारणा यह गलत है कि सेबी किसी दस्तावेज को मंजूर करती है। सेबी अपनी टिप्पणी देती है, अगर उसकी टिप्पणी या जो ऑब्जर्वेशन कहते हैं वो नहीं है तो ये एक इशारा होता है उस कंपनी का शेयर बाजार में जाने का, चाहे वो आईपीओ के रूप में हो या एफपीओ के रूप में हो। अब सेबी जब उसमें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जब दाखिल किया जाता है सेबी में, तो सेबी उस कंपनी की ओर से किए जा रहे तमाम दावों की पड़ताल करती है अपने स्तर पर। फिर वो ये देखती है कि जो कंपनी की वित्तीय स्थिति है वो किस तरीके की है, या कंपनी ने जो कुछ भी उसमें अपने बारे में बताया है वो कितना हद तक सही है। अब ये जो पैसे की बात है, प्राइसिंग की बात है, वो तो मर्चेंट बैंकर की टीम होती है जो मिल करके तय करती हैं और फिर वो कहते हैं कि ये प्राइस बैंड होना चाहिए। सेबी आपसे ये नहीं कहती कि ये प्राइस बैंड मत रखिए। सेबी उसकी जगह पे ये कहती है कि चूंकि जब आप निवेशकों के पास जाएंगे उनके पास बुक बिल्डिंग का ऑप्शन है, यानी निवेशक आपके प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। तो निवेशक की जो ये निवेश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक नियामक संस्था आपसे नहीं कहती कि आप इतनी ही कीमत लीजिए, लेकिन आपने अगर कीमत ज्यादा रखी है तो निवेशक ही तुरंत आपको जो है बता देता है कि आपका ये जो आपने जो प्रस्ताव दिया है वो मुझे मंजूर नहीं है, डिमांड नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सेबी देखता है मूल रूप से कि जिन मुद्दों की आपने बात की है वो कायदे कानून के हिसाब से है कि नहीं है, नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं है कि नहीं है। दूसरा, जो आपने कीमत रखी है वो कीमत के पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे की दलील क्या है, और फिर इस हिसाब से प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणियां या कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। अगर टिप्पणी नहीं है तो एक तरीके से इशारा मिल जाता है कि आप बाजार में जा सकते हैं। ध्यान रखिए, सेबी किसी भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करती है, क्योंकि सेबी जब मंजूर करती है तो इसका मतलब कि सेबी की जवाबदेही बन जाती है। कल होकर के उस आईपीओ में आपका नुकसान हो गया तो आप सेबी के पास जाकर के माथा नहीं पटक सकते, कि सर नहीं फोड़ सकते कि मेरा नुकसान हो गया, आप मैंने नुकसान की भरपाई करे। जब नुकसान की भरपाई तभी करेंगे जब कोई जिम्मेदारी ले, यानी कि मंजूरी करे। सेबी आपको मंजूर नहीं करता है। That's very, very important point you made, Shishir. Let's move on. We are now joined by Rinku calling from Jammu. जी रिंकू, सवाल पूछिए। हेलो, या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैम। मैं जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के साथ वो इंटरेक्शन है, ये कब होगी? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के साथ किस मुद्दे पर बैठक होनी है?
रमेश कृष्णामूर्ति ये है, ये डाला हुआ है 100.1 FM गोल्ड 19 को। अच्छा, किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी? अच्छा, वो जानकारी कार्यक्रम के बारे में माफ कीजिएगा, वो तो जानकारी आपको हमारे जो एंकर्स हैं वो बता सकते हैं या हमारे कार्यक्रम के अधिकारी आपको बता पाएंगे। इसने कहा कि अगर कोई क्वेरी है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे, तो ये मैंने वहीं से नंबर लिया है, तो इससे मैंने नहीं, वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी, कहीं ये ना हो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम ना हो। अभी हम पक्के तौर पे नहीं कह पा रहे हैं आपसे, पर हम हर मंडे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आता है 9:30 बजे। मे बी इट्स अबाउट दैट, विल कंफर्म इन अ वाइल। रिंकू, और अब दिल्ली से रमेश हमारे हैं अगले कॉलर। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए जी। रमेश जी, सवाल पूछे। मैम जी नमस्कार। मैम जी नमस्कार। मैम जी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ मैडम। मैंने 1990 और 91 में मैडम मैंने 20,000 25,000 मैंने नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे लगाए थे मैडम, NSS के अंदर पोस्ट ऑफिस में। हेलो, हाँ जी पूछिए। तो मैडम मैं इस बार पासबुक में एंट्री कराने गया इंटरेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि आपका इस बार ब्याज जो है ना सितंबर तक लगेगा, आप ये गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है तो आप पैसे विड्रॉ कर दीजिए। तो मैडम मैं पूछ रहा था आपसे सर, मैडम क्या मैं विड्रॉ करता हूँ मैडम, नियर अबाउट 7 लाख बन गए हैं वो आज की डेट में, तो क्या वो मेरे टैक्सेबल इनकम बनेगी या नॉन टैक्सेबल रहेगा वो? शिशिर जी, नेशनल सेविंग स्कीम या अब जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पे जाना जाता है, उसमें जो ब्याज जोड़ता है उस पर आपको टैक्स कट जाता है, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। All right. We are now joined by Jay calling us from Delhi again. Yes, Jay, सवाल पूछिए जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी शिशिर। yes. सर ये पूछ रहा था, मतलब ये सुकन्या समृद्धि योजना में कितने खाते खुलवा सकते हैं एक परिवार से, और दूसरा ये PPF में सर कितना सेफ है पैसा, ये पूछ रहे। PPF तो देखिए बिल्कुल ही अच्छी योजना है। आज के दिन में देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड इकलौती योजना है जहां पर ट्रिपल ई का सिस्टम है। ट्रिपल ई का सिस्टम हम लोग ये कहते हैं जिसमें एग्जेम्प्ट मतलब आप इसको इस शब्द में समझिए कि जब आप पैसा जमा कराते हैं तो उतनी रकम यानी कि 1,50,000 रुपए तक की रकम यदि आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम यानी कि पुरानी कर की व्यवस्था में है तो वहां पर आपको उतनी रकम आपके कुल आमदनी से घट जाती है, यानी इस पर उसको टैक्स नहीं देना है। शर्त याद रखिए, पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको होना चाहिए। दूसरा ये कि उस पर जो ब्याज बनता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, और जब वो आप पैसा निकालते हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो PPF बिल्कुल ही एक जिसे कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, 15 साल के लिए है, और जिसमें आप 8 साल के बाद जो है वो कर्ज भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी व्यवस्था है। जहां तक रहा सवाल सुकन्या समृद्धि का, वो मुझे एक बार चेक करना होगा, लेकिन ये याद रखिए कि एक व्यक्ति जो है वो 1,50,000 तक ही जो है वो कर सकता है, और फिर यहाँ भी वही शर्त है कि आपको उसमें कर में छूट तभी मिलेगी जब आप पुरानी कर व्यवस्था में हो। और दिल्ली से हमारे अगले स्कॉलर हैं योगेश। योगेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए जी। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम लोग स्टॉक्स में SIP करते हैं, तो स्टॉक्स में SIP करने के लिए म्यूचुअल फंड में SIP होती है, सेम उसी तरीके से स्टॉक्स में SIP करी जाए या फिर इसको करने का कोई और तरीका है? देखिए स्टॉक में SIP का तो जो विकल्प है वो तो अच्छा विकल्प है ही। मेरा ये मानना है कि आप शेयरों में जो है वो किस्तों में निवेश करें, कि जब कभी भी बाजार में एक कहें कि बिकवाली का माहौल है, बाजार में गिरावट आ रही है, तो आप थोड़े थोड़े जिसको कहते हैं ना कि संख्या में आप शेयर खरीद लें, और जब ऐसे आपको फायदा क्या होगा कि जो आपकी जो लागत है तमाम शेयरों की, वो लागत आपकी घट जाएगी, औसत जिसको हम लोग कहते हैं। तो बिकवाली हो तो किस्तों में खरीदते रहिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। SIP जो म्यूचुअल फंड में आप करते हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपको फायदा ये होता है कि आपकी जो यूनिट्स हैं उसकी लागत जो है वो कम होती है, और यूनिट ज्यादा या कम भी आपके पास जो है आ सकता है। अगर कीमत बढ़ गई हो तो आपको यूनिट कम मिलेंगे, और यूनिट अगर कीमत घट गई हो, बाजार में गिरावट है, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पर भी औसत करना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप शेयर बाजार में SIP का सिस्टम लेना चाहते हैं तो हर बिकवाली के माहौल में आप थोड़ी थोड़ी संख्या में शेयर खरीदें, और म्यूचुअल फंड में SIP 1 या 2 जो है वो आप लगा सकते हैं, अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। Well, with respect to one of our listener friends' queries, he was asking about the Central Provident Fund Commissioner, CPFC, Mr. Ramesh Krishnamurthy. Let me just confirm that we'll have a bilingual live phone-in program, Public Speak,
tonight. Yes, that's tonight at 9:30 p.m. And there'll be an insightful discussion on employees enrollment scheme, paving way to social security for all. And this will be with Ramesh Krishnamurthy, Central Provident Fund Commissioner. And well, you can ask queries at the numbers which will be announced in the program. Also, you can WhatsApp to 9289094044. Don't worry, this number will be repeated once you tune into the program. All right, so that's about that. और ये सवाल जम्मू से रिंकू जी का था। करेक्ट। तो उनको अब मुझे लगता है कि उनके सवाल का समाधान मिल गया होगा। जी जी जी। और अब रुख करते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक में 0.6% की मंदी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 1.3% से अधिक के उछाल में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% बढ़कर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां आज गिरावट का रुख था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक लगभग 1.6% लुढ़क गया था। जर्मनी के डैक्स में 1.2% की गिरावट चल रही थी और लंदन के फुटसी 100 में लगभग 0.6% की मंदी थी। तो ग्रीनलैंड टैरिफ्स का असर देख रहे हैं हम यूरोपीय बाजारों में। बिल्कुल, देखिए वो पूरा का पूरा वैश्विक व्यवस्था में भी देखेंगे, भारत में भी देखिए, यूरोप के बाजारों में देखिए, क्योंकि एक डर और एक घबराहट सा माहौल तो है ही और उसका असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही उत्साहजनक खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7% बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा कि ये वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। इस बीच IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एक जो प्रश्न पूछा था सुकन्या समृद्धि पे, उस पे एक स्पष्टीकरण दे दूं कि एक परिवार में 2 बच्ची के लिए आप ये खाता खोल सकते हैं और उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि 2 जुड़वा मतलब एक जुड़वा बच्चे हो गए या 3 ऐसे हो गए तो जो उसमें फर्स्ट और सेकंड होंगे वहां पर 3 खोले जा सकते हैं या अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो आप 4 भी कर सकते हो। और मतलब अगर पहले में ही आपके जुड़वा हो गए तो आप दूसरे में नहीं खोल सकते। मतलब एक बार में 2 अधिकतम 2 है, अगर एक बार में 3 हो गई बेटियां तो 3 खाते खोल सकते हैं। Okay, that's wonderful. Let's move on and take a look at India's per capita income prediction. Well, India is set to achieve a per capita income of $4,000 by 2030, enabling its transition to an upper middle income country, according to a report by State Bank of India Research. The report noted that under the current World Bank classification, India would be placed alongside countries such as China and Indonesia. India took 60 years after independence to reach a $1 trillion economy, but it reached $2 trillion in just 7 years by 2014 and $3 trillion in another 7 years by 2021. In 2025, the Indian economy reached $4 trillion mark in just 4 years. The report has said that India will reach a $5 trillion economy within the next 2 years. Shishir, India unstoppable. Absolutely. निश्चित तौर पर जो स्थिति है प्रति व्यक्ति आय की उसको ध्यान में रखकर 2030 तक का ये आकलन है। केशव है हमारे अगले कॉलर जो काफी समय से वेट कर रहे हैं दिल्ली से। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछिए। हाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक कन्या की एक बैंक में अकाउंट खुलता है छोटे बच्चे की 18 साल या 21 साल तक वो मैच्योरिटी होती है, उस स्कीम को क्या कहते हैं और कितना मिनिमम से मैक्सिमम उसमें जमा होता है। दूसरा एक सवाल हो रहा है कि एक ही बैंक में अगर 30 लाख रुपए जमा है तो कहते हैं कि अगर उसमें बैंक बैठ जाता है तो 5 लाख रुपए ही आपको मिल पाता है एट ए टाइम, और कहते हैं कि 3 महीने के अंदर ये मिल जाता है और उसके बाद जो बाकी पैसा अगर बचा जाता है वो भी आपको सरकार की तरफ से गारंटी होती है। अभी पीछे आकाशवाणी में कार्यक्रम हुआ था उसमें ये बताया गया था, क्या इसके बारे में थोड़ा जरा
आप जिस पहली योजना की बात करें वो सुकन्या समृद्धि है, जिसका अभी हमने जिक्र किया। और दूसरा जो अब जाहिर सी बात है कि बैंक जब बंद हो जाए तो उस बैंक में जितने खाते आपके नाम पर हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो आपको 5 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर वो 30 लाख रुपए आपने 4 खाते में अलग अलग तरीके से, एक आपका अपना, एक आपका और आपकी पत्नी का, एक आपका और आपके बच्चे का, एक आपका और मान लीजिए कि आपके घर के कोई और भी सदस्य हैं, तो उन चारों को मिला करके आपको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर एक जो खाता है पूरे बैंक में, उस पे आपको 5 लाख ही मिलेंगे। All right, we are now joined by Prem from Delhi. Yeah. प्रेम जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये कि ग्रेजुटी के नियम में कुछ बदलाव सुनने में आया था, तो हमने रिजाइन डाला था अपने ऑफिस में, तो वो कह रहे हैं 5 साल से पहले किसी ने अगर छोड़ा तो ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, पर सरकार ने कहा है कि ग्रेजुटी 1 साल के बाद भी आप ले सकते हैं। तो इस पे क्या क्लैरिटी है वो दीजिए। देखिए, लेबर कोड, जो नया लेबर कोड लागू है, उसमें ये व्यवस्था है कि 1 साल की भी स्थिति में आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। चूंकि उसके रूल नोटिफाई होने हैं, तो शायद इसी वजह से वो तारीख को लेकर के उन्होंने आपके दफ्तर वाले ने ये बात कही होगी। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने और द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक जो ये इस तरह के आयोजन है और जिसमें जहां पर देसी विदेशी निवेशक ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए, हमारे लिए एक मौका होता है उनको लुभाने का। Well, global crude oil prices declined today as easing civil unrest in Iran lowered the risk of supply disruptions from key Middle Eastern producer. Brent crude was trading almost 0.8% down at $63 and 63 cents per barrel, and WTI crude was also trading 0.7% lower at $59 and 3 cents per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, well, the 24-carat gold was trading over 1.8% up at 1,45,710 rupees per 10 grams, and silver was trading over 5.4% higher at 3,03,930 rupees per kilogram a short while ago. Silver अनस्टॉपेबल। चांदी नया सोना है। बिल्कुल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का भी बता देते हैं। वहां दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाला सोना 1.8% की वृद्धि से 1,45,095 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी लगभग 5.4% के उछाल से 3,03,180 रुपए प्रति किलो पर थी। सो ये पहली बार है कि 3 लाख को क्रॉस किया है चांदी ने। चांदी में क्या निवेश की कोई संभावना है अभी? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि निवेश में बहुमूल्य धातु की बात जब हम करते थे तो हमेशा सोना सोचते थे। अब चांदी के प्रति दिलचस्पी देसी और विदेशी सभी में बढ़ रही है। सो आपको लगता है कि चांदी में निवेश डिप्स पे करना चाहिए? देखिए, चांदी में या सोना किसी भी असेट में जो है आपका निवेश, हमेशा ध्यान रखिए कि जब गिरावट हो तभी करें। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि निवेश करना हो तो गहने ना खरीदें। अगर आपने निवेश करना हो तो या तो आप उसके बिस्किट को खरीदें या फिर आप गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इस तरह के जो ट्रेडेड फंड्स हैं उसमें आपको जाना चाहिए। कई लोग गहने में खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि वो उनका निवेश है। गहने आपके लिए एक नगद का काम करता है, आप कभी भी जाके बेचते हैं। लेकिन गहने के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब जाते हैं बेचने के लिए तो मेकिंग चार्ज वो आपको वापस नहीं मिलता, और मेकिंग चार्ज हमेशा जो है वो एड वैलोरम है। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। मैं सोच रही थी बहुत सी महिलाएं सुनकर खुश नहीं हुई होंगी कि गहनों में इन्वेस्ट नहीं करना है। Alright, anyway, that was on a lighter note. Before we close, friends, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end in negative territory. Sensex slips over 300 points. Nifty closes below 25,600.
Major Asian markets end mixed, and International Monetary Fund raises India's economic growth projection to 7.3% for the current fiscal year. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So this is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood, and our expert Shishir Sinha ji to bid adieu. Namaskar. नमस्कार। थैंक यू। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.